Hi students. So in the previous video lectures, we have started and we have discussed and we have understand the structure of human egg, that is the ova. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस हमने स्टार्ट कर दिया था कि ह्यूमन ओवा या ह्यूमन जो एग है just after the oogenesis we have finished the oogenesis, we have discussed the structure, the basic structure of the egg or the ova, how it is. तो हमने क्या देखा कि egg, in case of the human, the ova or the egg, it is having one single nucleus which is eccentric. That means एक किसी एक तरफ में है, मतलब सेंटर में नहीं है किसी, it is present in one place, and polarity can be seen in the direction in which actually the nucleus is located. Towards that part of that pole is called animal pole, and opposite to that pole is called vegetal pole. ठीक है ना? Then the first layer which is actually cover, or which is actually protect, or we can also simply call it as plasma membrane, or other name is vitelline membrane, and that is also considered as primary membrane also. And then immediately after the second layer, or this next layer after the primary layer or the primary membrane or the vitelline membrane, the next layer is non-cellular, and it is non-cellular gelatinous structures which is secreted by follicular cell, and that is called zona pellucida. And then finally we have seen that follicular cells which are arranged in a special manner, and they appear somewhat radiating in appearance. The appearance is somewhat radiating, and that part is called corona radiata, right? And so this basically the egg, if you see, so it is having this many layers. Basically, if we divide, then we can divide into three different actually membrane. First is your primary membrane, that is your vitelline membrane. Then we have the secondary membrane which includes the zona pellucida and the corona radiata. And third, that is your it is conditional actually. The third one, it depends on the organism. It depends on the type of egg, type of egg laid by the organism. Like in case of the human being, we don't have the tertiary membrane, that is a shell. In case of the tertiary membrane, क्या होता है? वो शेल होता है. जैसे हम कभी किसी एग को देखेंगे, जैसे हम नॉर्मली जो एग खरीद के खाते हैं, मार्केट से लेते हैं उसे, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं जो एग, तो उसमें हम देख सकते हैं उसमें शेल है, that is a hard shell. So that hard shell is actually considered as, and we consider it as the tertiary membrane. ठीक है? तो tertiary membrane हमेशा हर किसी एनिमल के ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल केस में नहीं मिलेगा, हमें उनके एग में नहीं मिलेगा. जैसे ह्यूमन एग है, उसमें कोई भी टर्शियरी शेल नहीं होता है. ठीक है? उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल होता है, क्योंकि जो ह्यूमन सेल है या जो फर्टिलाइजेशन है या डेवलपमेंट है वो इंटरनल है. ठीक है ना? तो इसके लिए वो हमें टर्शियरी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं मिलता. वो टर्शियरी मेम्ब्रेन हम किस में देख सकते हैं? जब एनिमल जो एग को है अपने बॉडी से, मतलब द एग लेइंग एनिमल्स, okay, and the embryo and the fetus is completely developed inside the egg, so there is no placenta formation. So in that case we can see that tertiary membrane which is forming. Fine. So I hope that is clear to all of you. That much we have discussed. Now before we move on, so you need to please understand, and you please take the points. See, on the basis of like form, where the membranes has arise, we divide this membrane in three categories. जो मैंने आपको बोला कि तीन तरह के मेम्ब्रेन होते हैं. तो प्राइमरी मेम्ब्रेन, जिसको हम पहला वैटेलाइन मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन. The next we have the membrane that is secondary membrane, which is your follicular cells, forming the follicular cells, including the non-cellular gelatinous like layer. So both together is considered as secondary membrane, that is your zona pellucida and corona radiata. Then tertiary is secreted by a special gland. Okay, the tertiary membrane क्या मैंने बताया कि it is only available in case the organism are egg laying. तो उनमें जो
एग को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव पर्पस इट इज हैविंग अ थर्ड लेयर व्हिच इज टफ इन नेचर and which is secreted by special type of glands and or we can say the duct. Example क्या है, shell secreted by shell gland. अभी जो हम सबको पता है कि एक के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है नॉर्मली जैसे आप देख सकते हो रेप्टाइल केस में टॉर्टोइस के केस में तो उसमें हमें क्या मिलता है, द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट लेयर इज टफ. तो उसको वो सीक्रेट कैसे होता है, देयर आर सम स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दोज ऑर्गेनिजम्स बॉडी and those glands we can call them as shell glands. So those shell glands are responsible for the synthesis of the cell, the outermost tough structure of the stuff membrane. ठीक है. Now on the content of the yolk contain egg में क्या है, कितना क्वांटिटी में, उसके बेसिस में हम जो एग है उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं. I believe all of you have studied in the animal kingdom when you study the introductory part in class 11. So even though let us have a small quick revision so it will be clear to all of you. Yolk content मतलब जो एग के अंदर जो कंटेंट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रोथ फेज में जो कंटेंट है यॉक कंटेंट वो बढ़ जाता है ना, तो that the entire content which is there inside the egg that is called yolk content. ठीक है. Now the yolk content on the basis of the content we can divide the egg in different way. ठीक है. So we'll discuss that as well. But before that, there is a very small interesting fact that we also need to know, that there is a special type of chromosome which is known as lamb brush. एक स्पेशल तरह का क्रोमोसोम होता है जिसे हम बोलते हैं लैम ब्रश. ठीक है, जो कि इंसान के केस में हमें नहीं दिखता. हमें किसी केस में दिखेगा, we can see it in the case of lower vertebrate. और वो करता क्या है, it help to increase the yolk synthesis. ठीक है, क्या काम करता है, इसका काम है यॉक सिंथेसिस, मतलब मैक्सिमम यॉक बनाना. ये लोअर वर्टिब्रेट्स में हमें दिखेगा, हमारे ह्यूमन के केस में ये नहीं दिखता. और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलरेडी देयर एंड दोस क्रोमोसोम आर नोन एज लाम्ब्राश क्रोमोसोम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योर यॉक कंटेंट. सो जैसे हमारा ह्यूमन यॉक जो है वो है माइक्रोलेसिथल एग बोलते हैं हम उसे, मतलब ह्यूमन एग को हम माइक्रोलेसिथल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में मतलब याद आ जाएगा, बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस इन क्लास 11 इन एनिमल किंगडम, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट. नाउ टाइप्स ऑफ एग. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक. मैंने पहले ही बताया यॉक का कंटेंट कितना है, ज्यादा है, मीडियम है, कम है, उसके बेसिस में हम डिवाइड करते हैं. पहला क्या है, माइक्रोलेसिथल एग. व्हेन द अमाउंट ऑफ एग इज एक्चुअली इट इज लेस, comparatively less, or we can say very less. When the amount of egg is very less, then we can call those type of egg, if it is very less, then we can call it as microlecythal egg. Now next is, अच्छा example क्या है इसमें, example है human egg is the example. क्यों ऐसा होता है, हमारे एग में कम यॉक क्यों होता है, फिर से पहले भी बताया बहुत बार, फिर से बता देते हैं. Because the placenta provide the nutrition. हमारे केस में क्या बनता है, प्लासेंटा बनता है. The placenta is responsible for the which provide actually responsible for the like supply of nutrients or nutrition to the growing fetus. So हमें जरूरत नहीं होता है, इसीलिए हम इतना यॉक कंटेंट या यॉक गेन नहीं करते during the time of growth phase. मेसोलेसिथल एग मॉडरेट. पहला वाला क्या था, बहुत कम होता है यॉक, दूसरा है मॉडरेट, मीडियम क्वांटिटी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एग यॉक. ऐसा अगर होगा किसी एग में तो हम उसे कहते हैं मेसोलेसिथल. एग्जांपल क्या है, फ्रॉग. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें फ्रॉग में जो है ना इंटरमीडिएट स्टेज भी दिखता है जिसे हम बोलते हैं टैडपोल. इसीलिए क्या है, हम उनके केस में जो एग का यॉक जो कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं मॉडरेट होता है. देन मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल एग. इसमें क्या होता है, जो एग होता है ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, मतलब एग में जितना मतलब यॉक कंटेंट है विच इज इनफ टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन थ्रू आउट द ग्रोथ फेज ऑफ द fetus or the growing fetus, growing individual organism, embryo. ठीक है ना. एग्जाम्पल है birds, reptile, etc. Fine. So let's move on.
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, हमने तो अभी देखा कि यॉर्क कंटेंट के बेसिस में हमने डिवाइड किया। अभी दूसरा क्या कंडीशन है, उसमें उसके हिसाब से भी हम डिवाइड करते हैं। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉर्क। मतलब यॉर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द एग, उसके बेसिस में भी कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, या प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, उसके बेसिस में भी हम एग को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? होमो और आइसोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग थ्रू आउट द एग। हर जगह पे आपको एग का डिस्ट्रीब्यूशन सेम मिलेगा, इक्वल होगा। इसे बोलते हैं होमो और आइसोलेसिथल एग। एग्जाम्पल है ह्यूमन एग। नंबर टू, टेलोलेसिथल। इसमें क्या होता है? एग जो होता है किसी एक साइड में होता है। जैसे बर्ड्स के केस में हमें हम देख सकते हैं। जैसे हम जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पोल्ट्री का जो एग है वही कंज्यूम करते हैं। तो जब हम उसे उबालते हैं, व्हेन वी बॉयल इट एंड वी मेक इट, व्हेन वी कट इट, सो वी कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट जो यॉर्क है वो किसी एक साइड में ही ज्यादा है ना? जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये इट्स अ सेक्शन ऑफ एग आफ्टर वी बॉयल इट। तो क्या होगा? किसी एक साइड में आपको ज्यादा यॉर्क दिखता है। तो इस तरह के एग को आप कहते हैं टीलोलेसिथल एग। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रोलेसिथल एग। इसमें क्या होगा? नाम से पता चला होगा, एग इज एट द सेंटर। एग्जाम्पल, यॉर्क इज एट द सेंटर एक्चुअली इन दिस केस। एग्जाम्पल क्या है? इंसेक्ट इज द एग्जाम्पल, राइट। देन क्लेडोइक एग। क्लेडोइक एग मतलब सेल्फ सफिशिएंट एग। अभी हमने देखा कि जो एग मतलब एक जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म एनिमल है, रेप्टाइल में हमने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि जो एग है उसमें एक एक्स्ट्रा शेल भी होता है, उसमें जो यॉर्क कंटेंट होता है वो भी सफिशिएंट होता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग फीटस और एम्ब्रायो। ठीक है ना? सो ऐसा अगर है तो उसका हमने नाम क्या दिया है? उस तरह के एग को हम बोलते हैं क्लेडोइक एग। अगर सफिशिएंट न्यूट्रिशन अवेलेबल है यॉर्क में तो हम इसे बोलते हैं क्लेडोइक एग। एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। Now we will have a very small or a very quick comparison between the ovum and sperm with on the basis of certain characters. ठीक है? So it's a very quick comparison. This is ovum, this is sperm column. First, structure. Structure of the ovum is circular, but the sperm is flagellated. Parts have head, neck, middle piece, and tail. This is middle piece. Okay. Now nucleus कैसा है? Nucleus is in case of ovum it is swollen and it is coated or sorry blotted with nucleoplasm. तो nucleoplasm होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो स्पर्म केस में तो condensed with no nucleoplasm, तो इसमें nucleoplasm नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया scattered in ooplasm. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? ओप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। लेकिन स्पर्म के केस में क्या होता है? इट इज हैविंग स्ट्रक्चर स्पाइरल, इट फॉर्म्स अ स्पाइरल स्ट्रक्चर नोन एज नेबुलर। हमने पढ़ा था, फाउंड इन द मिडिल पीस में होता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल। एग में जो आपकी ह्यूमन एग होता है उसमें कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता है, नो सेंट्रियोल। स्पर्म में टू सेंट्रियोल, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, that is a ring contractile seen sometime. हमने देखा है डायग्राम में, हमने प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल सेंट्रियोल है हमने मार्क किया था जब डायग्राम में स्टडी किया था। नेक्स्ट, मोटिलिटी। एग्स आर नॉन मोटाइल, स्पर्म्स आर they are motile. Next is cytoplasm. Sufficient or maximum cytoplasm is present. Okay, जितना साइटोप्लाज्म चाहिए उतना रहता है ओवम के केस में या के एग के केस में, बट इन केस ऑफ स्पर्म वेरी लेस कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर और वी कैन से ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन, सिर्फ टेल रीजन में होता है। मेम्ब्रेन, three membrane are there. First is your vitelline membrane, then is zona pellucida, third one is a corona radiata, हमने अभी just discuss किया। और स्पर्म के केस में क्या है? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, एक ही लेयर होता है। ठीक है ना? चलिए, next is very important topic we are going to discuss now. That is your menstrual cycle. So by this we have discussed and we have to understand the male and female reproductive system, organ,
and basic structure. Okay. Now we'll talk about the, and also we have discussed the formation of male gamete and female gamete. अभी हमने डिस्कस किया, खत्म किया हमने कि oogenesis क्या होता है, spermatogenesis क्या होता है, oogenesis कैसे होता है, spermatogenesis कैसे होता है, मेल या फीमेल गैमेट बनता कैसे है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है दोनों का, तो हमने पढ़ लिया। स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ओवा का स्ट्रक्चर या एग का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द फीमेल, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल। ओके, so there are certain facts that we will discuss. First, this is a characteristic feature of primates. Menstrual cycle जो होता है ना, ये हमें primates में दिखता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन फीमेल, एप्स, ठीक है ना, एप फीमेल, उनमें हमें दिखता है। प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स हमने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम में, आपको पता होगा। सो प्राइमेट जो होते हैं उनमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है ना। अब जो चेंजेस होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें दिखेगा, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नाउ बाय दिस साइकिल व्हाट इज हैपनिंग, the females are actually basically get prepared or get ready for pregnancy. Okay, if this cycle is going on or cycle is happening in case of the female, in case of primate female, then that is actually going to help, or that is actually going to make the female ready for pregnancy. That is the purpose of the cycle, right? And this cycle starts at puberty. कब start होता है? Puberty में start हो जाता है, and it will continue in a particular type actually. मतलब एक पैटर्न में होता है, मतलब एक समय लगता है इसको खत्म होने में, एक साइकिल में होता है, जिसे हम बोल सकते हैं मेंसम, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेंसम, दैट कैन कॉल इट एज मेंसम, और उसका मतलब होता है मंथ। क्यों हम इसे मंथ बोलते हैं? क्योंकि ये जो पूरा साइकिल है ना, ऑलमोस्ट इट टेक अ मंथ, 28 डेज, इसीलिए हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड द वर्ड इट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड मेंसम। अभी हमने देखा मेंसम मतलब होता है मंथ, इसी वर्ड से हमने आगे जाके हमने इसको मतलब हम कहते हैं इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स, all the events what is happening during the menstrual cycle or ovarian cycle in case of female. Then at the end we'll see a diagrammatic representation to understand easily. Okay, so let us discuss the events or everything, all the different step, we should not say step, all the events what is happening during this cycle. So let us consider that first. Let us discuss that first. Okay, now what we have discussed, this is a characteristic feature of primates, that is right. और ये कहाँ पे हमें ये साइकिल किस में दिखता है? हमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखता है। काम क्या है इसका? प्रेगनेंसी को जो है उसको मतलब हेल्प करता है। इट इज बेसिकली प्रिपेयर द फीमेल फॉर प्रेगनेंसी, उसे तैयार करता है। नाउ द साइकिल स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, और ये एक बेसिक पैटर्न होता है। इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अ पैटर्न एंड और साइकिल, और दैट इज कॉल्ड, इट कंटिन्यू इन अ पर्टिकुलर टाइप, दैट इज कॉल्ड मेंसम, और मंथ, एक महीना लगभग लगता है इसको खत्म होने में, हर एक साइकिल को, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एवरी मंथ देयर इज वन follicle, primary follicle, which is getting mature, and for that entire process it will take almost 28 days, almost 1 month, that is in this case how many days it require, the cycle completes in 28 days, तो पूरा लगभग एक महीना हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक महीने का साइकिल। सिंपली अगर बहुत कॉमनली हम बताएंगे तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है। बट ये बहुत वेरिएबल है इन केस ऑफ फीमेल, ये एक पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके बॉडीली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये जो साइकिल है 2-3 दिन आगे या पीछे हो सकता है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डे या डेट में ही ये साइकिल स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर डे में ही खत्म होगा। ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय at that time what is the condition, bodily condition of that particular female, कैसा अभी बॉडी का कंडीशन है उनका, क्या उनका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, वो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना।
So it is normal actually. It is not abnormal. This is normal, completely normal. If it happens, if it actually happens 2 or 3 days up and down, it's okay. Now the cycle remains suspended during the pregnancy. अब क्या होता है, ये जो साइकिल होता है menstrual cycle, ये it is actually it is suspended, मतलब menstrual cycle बंद रहता है कब, जब प्रेगनेंसी कोई भी फीमेल जब कंसीव कर लेती है, और उनके केस में तब क्या होगा, until the birth of the child, मतलब एंटायर जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ जो जेस्टेशन पीरियड होगा उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो साइकिल है आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट कैन रिमेन गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इमीडिएटली द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट, ऐसा भी नहीं है। लैक्टेशन मतलब जब कि हमने पढ़ा है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी द मदर is going to secrete the milk, तो ये जो इसी को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन फेज। तो इस समय जो होता है मिल्क सिक्रीशन जब होता है, तो जब तक मिल्क सिक्रीट करेगा मतलब फीमेल मिल्क सिक्रीट करेंगे, तो तब तक हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शायद तब तक भी बंद रह सकता है। ये सब कुछ थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब प्रेगनेंसी तक बंद रहेगा ही, दैट इज श्योर, बट आफ्टर दैट लैक्टेशन पीरियड में कब तक बंद रहेगा, दैट इज सब्जेक्टिव, that is depends on the condition. Okay, now the cycle permanently stop at the age of 50 to 52. अब ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है केस ऑफ फीमेल, और ये जीवन का जो आपके लाइफ साइकिल के एक समय पे आके खत्म हो जाएगा या बंद हो जाता है। वो कब होता है, इट डिपेंड्स, नॉर्मली द रेंज इज 50 to 52। 50 से 52 इयर्स एज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली बंद हो जाता है। कभी कभी किसी के केस में देखा गया है पहले भी हो जाता है थोड़ा, या किसी केस में, किसी फीमेल केस में थोड़ा बाद में भी हो सकता है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली रेंज, प्लीज डोंट टेक इट एज अ वेरी रिजिड डाटा, ठीक है। ये एक हमें जनरल मिला, जनरल हम पढ़ते हैं, हम जनरल हमने स्टडी किया है, हमने तो देखा है कि ये एक रेंज है। मैक्सिमम जो फीमेल है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 50 से 52 इयर्स के अंदर बंद हो जाना चाहिए, हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। नाउ मेनोपॉज, इसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण रूप से कंप्लीटली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाए, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। अब जो मेनोपॉज होता है इसके भी बहुत सारा इफेक्ट है, ठीक है। तो जो मेनोपॉज में क्या क्या इफेक्ट होगा, हाँ मतलब क्या क्या हमें देखने मिलेगा चेंजेस फीमेल के बॉडी में, तो उसके बारे में थोड़ा बात, कुछ जो कैरेक्टर्स उसके बारे में बात करते हैं, सब नहीं जो इंपॉर्टेंट है बात करेंगे। पहला, डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी। क्या होगा इससे, पहला तो जो होगा, जो एस्ट्रोजन लेवल होगा बॉडी में वो घट जाएगा। दूसरा है एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है उसका लेवल घट जाएगा। दूसरा क्या है, दे विल एक्सपीरियंस हॉट फ्लैशेस, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल है वो अपने जो फेस रीजन है, जैसे आप हाउ कैन आई लेट मी गिव एन एग्जांपल। हॉट फ्लैशेस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत गुस्सा, आपको बहुत गुस्सा आ गया, या आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, या फिर आप बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल बहुत ज्यादा भाग लिए मान लीजिए, तो आप देखिएगा आपने कभी ना कभी बहुत खेल लिया आपने, तो देखना आपने बचपन में या कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके जो फेस रीजन है यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलना शुरू हो जाता है, तब गर्म, आपको बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाता है फेस रीजन में, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। तो वो जो उसी तरह का फीलिंग है उन्हें बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के या किसी और रीजन से, नॉर्मली बिकॉज ऑफ ओनली मेनोपॉज दे विल फेस दोस टाइप ऑफ हीट फ्लैशेस समटाइम, हीट फ्लैशेस, ठीक है। नाउ मूड स्विंग, और क्या होगा, मूड स्विंग होगा, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है आफ्टर दिस। नाउ एज द एस्ट्रोजन बिकम जीरो, इसीलिए जो है ना आप देखिएगा कि जो आपके प्रेगनेंसी पीरियड में या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है होता है उस समय भी जो फीमेल है उनका जो मूड स्विंग होता रहता है, क्योंकि उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक समय आएगा, एक टाइम होता है जबकि एस्ट्रोजन बहुत कम होता है लेवल, तो हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर होगा। इसीलिए मूड स्विंग हमें फीमेल में दिखता है उस समय, ठीक है ना। नाउ एज एस्ट्रोजन बिकम जीरो, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज मेनोपॉज हो गया तो एस्ट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो क्या होता है ना, जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है बॉडी में उनमें, ठीक है, इट शो इट्स इफेक्ट। देखो टेस्टोस्टेरोन में जो होता है ना वो भी रहता है फीमेल के बॉडी, लेकिन वो इट इज नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड
क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है तो टेस्टोस्टेरोन अपना जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा सकता। लेकिन जब एस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो होता है जो टेस्टोस्टेरोन है, इट इज आल्सो गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट। इससे क्या होगा, फेशियल हेयर्स, फेस में, फीमेल के फेस में हमें हेयर ग्रोथ दिखेगा। जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर आपके घर में कोई बहुत ही एजेड लेडी है, जैसे आपके ग्रैंड माँ हो सकती हैं या फिर कोई भी और लेडी अगर आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव में है, तो आप देख सकते हो कि उनके फेस में हेयर ग्रो होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मेल के केस में बहुत सारा बियर्ड हो गया, ऐसा नहीं। मतलब मान लीजिए 2-3 या 1-2-3-4 ऐसा कुछ हेयर होगा जो आपको विजुअल होगा, देख सकते हो, वैसा हेयर ग्रोथ आपको दिखेगा, ठीक है ना। और ये रीजन है इसका, ठीक है। द रीजन इज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द टेस्टोस्टेरोन शोज दिस इफेक्ट। इसलिए फेशियल जो हेयर्स है इट अपीयर्स फाइन। तो ये तो सारे जो थे इफेक्ट थे आपके, जो कि मेनोपॉज के लिए होता है, फीमेल में हमें दिखता है, तो हमने डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में कि कैसे खत्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे स्टार्ट होता है सब, और हमने कितने फेज में उसको डिवाइड किया है। तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कंप्लीट्स इन 4 फेजेस एक्चुअली, और 4 स्टेजेस। द फर्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। वो कितना दिन का होता है, 4 से 5 दिन का होता है, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज एज वेल। इसी ये जो समय होता है, इसी समय ब्लीडिंग होता है 4 to 5 days, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज एज वेल और मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट इज नंबर 2, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, ठीक है। ये क्या होता है, 10 से 12 दिन तक चलता है। इसे हम दूसरा नाम भी हमने इसको दिया है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेशन फेज। क्यों, because the proliferation of the primary follicle can be seen, that's why we call it as proliferative phase as well. Third one is called ovulation or ovulatory phase. ये कब होता है, ये exactly 14th day में होगा, exactly, ठीक है ना। पहला 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, 10 से 12 दिन, उसके बाद 10 से 12 दिन तक क्या चलेगा, फॉलिकुलर फेज होगा। एंड देन ऑन 14th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। मतलब हमने पढ़ा था, मतलब शुरू में हमने देखा था कि ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होगा और जो ओवा है या एग है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कब होता है, ये आपको याद रखना है, 14th डे में होता है, ठीक है, 14th डे ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कब तक होता है, 15th to 28th डे। कब से कब तक, 15वां दिन से लेके 28वां दिन तक, ठीक है। इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज, और इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीक्रेटरी फेज, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे हम एक्चुअली और एक तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेसिकली 3 तरह से हम देख सकते हैं, 3 तरह के चेंजेस हमें बेसिकली दिखते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल पूरे साइकिल को, तो मोटा मोटा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 डिफरेंट तरीके से, 3 डिफरेंट मतलब कह सकते हैं 3 डिफरेंट तरीके से हम समझ सकते हैं कि 3 डिफरेंट तरह के चेंजेस होते हैं बेसिकली, मेन, ठीक है, मेन 3 डिफरेंट तरह के चेंजेस होते हैं। पहला क्या है, चेंजेस इन द ओवरी। ओवरी में चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होंगे, ग्राफेन फॉलिकल बनेंगे, ठीक है ना। तो ओवरी में जो है वो चेंजेस होगा। और क्या होगा, ओवेरियन जो हॉर्मोन्स है उसमें हमें बहुत सारा चेंजेस देखने मिलेगा। कोई हार्मोन बढ़ जाएगा उसका किसी एक समय में, मतलब ड्यूरिंग द साइकिल सम हार्मोन लेवल विल इंक्रीज, सम हार्मोन लेवल विल डिक्रीज, ये हमें दिखेगा। तो हार्मोन जो ओवेरियन हार्मोन्स है उसमें हमें फ्लक्चुएशन दिखेगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है, यूटेराइन वॉल, जो आपका यूटेराइन वॉल है उसमें भी हमें फ्लक्चुएशन दिखेगा। उसका थिकनेस घट जाता है, वो रप्चर हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, इसीलिए तो ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि जो यूटेराइन वॉल है उसका जो थिकनेस होना चाहिए वो नॉर्मली 5 mm का होता है, ठीक है। नॉर्मली मतलब मैक्सिमम वो अटेन करता है 5 mm तक, लेकिन नॉर्मली वो 2 to 3 mm तक होता है। और वो जो थिकनेस है यूटेराइन वॉल का, जो थिक पार्ट है, वो एक्चुअली स्क्रैप, वो एक्चुअली लूज करता है आपका ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल लूज इट, ठीक है। और इसी के लिए ब्लीडिंग होता है, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। सो 3 तरह के चेंजेस हमें दिखेंगे। पहला है ओवरी में चेंजेस दिखेगा, उसके बाद दूसरा हमें ओवेरियन हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन दिखेगा, तीसरा यूटेराइन वॉल में भी हमें चेंजेस दिखेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है।
Now we'll discuss one by one all the events. First is menstrual phase. ठीक है, अब menstrual phase में क्या होगा? The endometrial wall lining is lost. फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था ना 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होगा, तो होता क्या एक्चुअली, अभी मैंने बताया आपको, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, हमने आपको पता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या, हमने पढ़ा था यूटरस के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में, सो यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल. ठीक है, सो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होता है, वॉल का जो लाइनिंग होता है, इट इज गोइंग टू इट एक्चुअली लॉस्ट एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, और ये कब होगा? It takes place when the progesterone level is very very low. Progesterone level जब बॉडी में घट जाता है. ठीक है, अभी हमने देखा ना कि ओवेरियन जो हार्मोन है उसका भी इफेक्ट होगा, वो भी फ्लक्चुएट करेगा. तो देखिए पहला क्या हो गया, एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो हमने लॉस, फीमेल जो है वो लॉस कर दिया उन्होंने, और वो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. जब वो दे लॉस द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल, देन दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, which cause the bleeding and it takes place. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है बॉडी में घट जाता है, बहुत घट जाता है, इट रिड्यूसेस और द प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज बिकम वेरी वेरी लो. तब जाके ये सिचुएशन होता है, तब जाके जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो आपका लॉस होता है. ठीक है, नाउ अब जब बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत कम है, इफ इट इज वेरी लो, एज ए रिजल्ट इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत कम होता है, so then it is going to stimulate the pituitary gland to increase the secretion of FSH. तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल फीमेल के बॉडी में बहुत घट जाएगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा. क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियल वॉल जो है लाइनिंग है वो लॉस हो जाता है. ठीक है, और इससे इफेक्ट क्या होगा इसका इफेक्ट ये है, इट इज गोइंग टू एक्चुअली स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए? टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ FSH, दैट इज अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, इससे क्या होगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है FSH है, that will be secreted, then the pituitary will start to secrete that FSH in other way we can say. ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन लेवल. देखिए ये इनको बहुत ध्यान से समझना है. पहला क्या हो गया, फर्स्ट पे हमने क्या देखा कि एंडोमेट्रियल वॉल जो है मेंस्ट्रुअल, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज में जो क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हो गया. मतलब क्या हो गया, एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो लॉस हो गया, इससे ब्लीडिंग हो रहा है. और वो होता क्यों है, उसका रीजन है जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत घट गया है बॉडी में. इससे क्या होगा, इससे पिट्यूटरी जो है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी विल गेट स्टिमुलेटेड और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा. उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है ना. नाउ आउट ऑफ दिस क्लस्टर्स ऑफ फॉलिकल, अब देखो फॉलिकल जो क्लस्टर है उसमें अभी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होगा, अगर वो सीक्रेट होना शुरू होगा तो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इफेक्ट द follicles. As a result, one primary follicle will actually get mature and become bigger and finally form the Graafian follicle. अब हम सबको पता है कि follicle stimulating hormone का काम क्या है, it will going to stimulate the primary follicle and it will stimulate, and the process of maturation of the primary follicle will start and ultimately will get the matured and the bigger sized Graafian follicle. है ना. तो हमें पता है FSH अगर बढ़ जाएगा, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीजन, सो क्या होगा, हमें प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा, एक प्राइमरी फॉलिकल ओवरी से निकल जाएगा, मतलब मैच्योर होना, निकल जाएगा, मतलब मैच्योर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, और मैच्योर में क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है ना. नाउ द फॉलिकल स्टार्ट टू प्रोड्यूस, दैट इज एस्ट्रोजन. अभी हमने पढ़ा है, हमें पता है कि जब एस्ट्रोजन ग्रो करता है, सॉरी जब प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है, मतलब इमैच्योर ओवेरियन मतलब फॉलिकल्स, जब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, हमें पता है उस समय वो हार्मोन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन. ठीक है ना. सो एस्ट्रोजन कब रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, इमैच्योर जो आपके ग्राफियन फॉलिकल है वो रिलीज करता है. ठीक है ना. तो FSH आया, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, ओवरी को स्टिमुलेट किया, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, तो फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो गया. तो जब वो मैच्योर होता है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट इज आल्सो स्टार्ट टू सीक्रेट वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड योर एस्ट्रोजन. तो उसपे क्या, एज ए रिजल्ट क्या हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होने लग गया. ठीक है. नाउ द एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इज आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ follicles are growing. ठीक है. And that is happening because of FSH.
ठीक है ना, ये सारा इवेंट आपको एक के बाद अच्छे से समझना है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा घट गया, इसीलिए क्या हुआ, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी। ठीक है, उसके पहले हमने क्या देखा, मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग है वो लॉस हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये सब कब हो रहा है, आप देखिए जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम है, और जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है तो वो क्या करेगा, एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देगा, तो वो क्या करेगा, एफएसएच को रिलीज कर देगा। एफएसएच क्या करेगा, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को रिलीज कर देगा, ताकि वो मैच्योर होकर ग्राफेन फॉलिकल बन जाए। और जब ग्राफेन फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा, ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम it is going to release this follicles, the immature graphene follicles, they will also start to release hormone that is called estrogen. इससे क्या होगा, फीमेल के बॉडी में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन या लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अब ये जो एंडोमेट्रियम जो है, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है, ये अगर ये तो लॉस हो गया शुरू में, हमने देखा मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज में, इसको वापस फिर से बनना होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्क्रैप्ड ऑफ। तो अभी क्या है, इसे फिर से अपने आप को रिपेयर करना होता है। तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करना भी स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो इट रिपेयर्स इटसेल्फ एंड बिकम थिक। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करेगा, और वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके अपना थिकनेस बढ़ाएगा। पहले बिल्कुल खत्म हो गया था, अभी क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2 से 3 mm बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2 से 3 mm बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, सिर्फ थिक नहीं होगा, इट इज ऑल्सो बिकम ग्लैंडुलर, जो भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जरूरी है उसमें वो भी बन जाएंगे। ठीक है ना। नाउ दिस फेज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल एंड नोन एज फॉलिकुलर फेज। अब ये जो होता है ना, ये प्राइमरीली किसके लिए होता है, कौन इसे हेल्प करता है, जब फॉलिकल मैच्योर होता है ना, तो इट इज एक्चुअली अ सिग्नल। जब फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल जब मैच्योर होना शुरू हो जाता है, ग्राफेन फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है, तो फीमेल बॉडी के अंदर ये सिग्नल मतलब जनरेट होता है कि अभी जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसको रिपेयर करना है। तो वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। कितना रिपेयर हो जाएगा, इट फॉर्म 2 to 3 mm ऑफ थिकनेस, इतना थिक बन जाता है। ताकि अच्छा, आप बोलोगे कि सर इसका जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि एंडोमेट्रियल वॉल क्यों बन रहा है, फिर से वापस क्यों बन रहा है, इसलिए आपको क्यों बन रहा है आपको जानना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द जाइगोट, द एम्ब्रायो इज गोइंग टू इम्प्लांट ऑन द एंडोमेट्रियल वॉल ओनली। तो अगर एंडोमेट्रियल वॉल है ही नहीं होगा, तो फिर एम्ब्रायो आके कहां सेटल होगा, कहां पे आके इम्प्लांट होगा, कहां पे प्लासेंटा बनेगा, ग्रो कैसे होगा, है ना, फिर एम्ब्रायो ग्रो कैसे करेगा। इसीलिए जो आपका एंडोमेट्रियल वॉल है वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एग विल सी, अभी ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर होगा मतलब एग बनेगा, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एग विल गेट फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म। अगर स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आके कहां सेटल होगा, एंडोमेट्रियल वॉल में सेटल होगा। इसीलिए जो है फीमेल बॉडी में ऑटोमेटिकली ऑल द प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। इसीलिए एंडोमेट्रियल वॉल को भी बनना पड़ता है, तो वो बनना शुरू हो जाता है। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलिकुलर फेज, आपके सॉरी, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो बॉडी में धीरे धीरे, क्योंकि जब ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्राफेन फॉलिकल्स बन रहे हैं, मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट होता रहेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो अभी क्या है, हाई एस्ट्रोजन लेवल, उसके लिए क्या होगा, इज गोइंग टू स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू डिक्रीज द सिक्रीशन एफएसएच। अब एस्ट्रोजन जो लेवल है वो अगर बढ़ता रहेगा, अभी हमको पता है कि हर महीना every month there will be there is only one follicle which is going to mature। तो अगर, और वो किसके इफेक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एफएसएच। अगर एफएसएच कंटिन्यूसली रिलीज होता रहे और कंटिन्यूसली इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहे, तो फिर से ये दूसरे फॉलिकल को भी स्टिमुलेट कर देगा ना। इसीलिए हमें जरूरी क्या है कि एफएसएच का इफेक्ट को भी हमें घटाना है। वो कौन करेगा, वो करेगा एस्ट्रोजन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही देखिए नेचुरल बैलेंस है। पहले जो था आपका प्रोजेस्टेरोन कम था, तो वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट कर दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो एफएसएच रिलीज हो गया, एफएसएच स्टार्ट कर दिया किसको स्टिमुलेट करना, प्राइमरी फॉलिकल को, तो ग्राफेन फॉलिकल स्टार्ट हो गया बनना। तो जब ये बनना शुरू हो गया, ग्राफेन फॉलिकल बन रहा है, मैच्योर हो रहा है, उसी समय एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो गया। तो जब ये ग्राफेन फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब तक एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, तो एफएसएच को ये
जो है इसका जो एफएसएच का स्टिमुलेशन जो सिक्रेशन उसे वो घटा देगा, ठीक है ना, ये डिक्रीजेस द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मतलब फीमेल के बॉडी में ऑलरेडी ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, एक बनेगा भी थोड़ी देर में, कुछ ही समय के बाद एक हमें मिल जाएगा, तो इसीलिए हमें दूसरा जो प्राइमरी फॉलिकल नहीं चाहिए, इसीलिए एस्ट्रोजन क्या करता है, एफएसएच का इफेक्ट है, एफएसएच का सिक्रेशन को घटा देता है, ठीक है, तो और करता क्या है, इट इंक्रीजेस सिक्रेशन ऑफ एलएच। एस्ट्रोजन का दो काम है, एक एफएसएच का जो इफेक्ट है सिक्रेशन का, सॉरी जो इसका सिक्रेशन है उसे घटाता है, और किसका सिक्रेशन बढ़ा देगा, एलएच का सिक्रेशन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ग्राफेन फॉलिकल अभी मैच्योर हो चुका है, अभी इसको रप्चर होना पड़ेगा ना, क्योंकि एक जो है वो ग्राफेन फॉलिकल के अंदर है, ठीक है, तो अब क्या होगा, एफएसएच का जो सिक्रेशन है वो हम घटा देगा आपका एस्ट्रोजन, और एलएच का सिक्रेशन को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, एलएच आएगा, एलएच का जब सिक्रेशन ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एलएच, the graphene follicle will get ruptured and the secondary will get the secondary in the female body, the secondary oocyte is will come out from the ruptured ovarian follicle, graphene follicle। और ये कब होता है, ये होता है, करता कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, और वो होता कब है, ये होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब कि जो एलएच का लेवल है इट इज एक्चुअली वेरी हाई, ठीक है, क्यों रहता है, फॉर ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के लिए आप देखिएगा कि हमने ये देखा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड फॉर ओव्यूलेशन एंड आल्सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, एलएच का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इट बिकम वेरी हाई, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी इसे हम कहते हैं एलएच सर्ज, इसे हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। सो एलएच सर्ज क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द concentration or the level of LH increases very high, that is called LH surge। Now after that the rupture of the graphene follicle, the corpus luteum, हमने देखा था कि जब graphene follicle rupture हो जाता है तो फिर वो जो blood clotting जो bloods होते हैं, जो blood vessels rupture होते हैं, तो उसमें थोड़ा bleeding भी होता है हल्का, and slowly थोड़ा सा blood loss होता है, I should not say it's bleeding, it is very negligible, तो थोड़ा सा जो वहां पे blood vessels है, they will all get because of the blood will get clot and they will also modify, they will form another structure that is called corpus luteum, ठीक है, तो जब ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो गया तो क्या बन जाएगा, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट as a result the estrogen level, it will start to secrete the progesterone। अभी जो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन उसको सीक्रेट करेगा, और बॉडी में इसका जो लेवल है वो बढ़ाता रहेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, इससे जो आपका इट विल इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके इफेक्ट होगा एंडोमेट्रियल वॉल के थिकनेस पे। तो हमने देखा था एंडोमेट्रियल वॉल बिकॉज ऑफ द फॉलिकुलर इफेक्ट, फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज इट रिपेयर इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपेयर करता है खुद से, और वो कितना थिकनेस हो जाता है तब 2 से 3 mm। बट आफ्टर दिस rupture of the graphene follicle and after the formation of the corpus luteum, it will start and it will increase the progesterone level in the body, and as a result the thickness of the endometrial wall will increase further or it will become more thick। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अभी 5 mm, पहले कितना देखा था हमने, 2 से 3 mm था, ठीक है ना। Now the corpus luteum remain in the if the fertilization takes place। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम की हमने बात किया ना, ये मतलब रह जाएगा। अब मान लो कि अभी हमारे पास क्या है, हमने अब क्या देखा कि फीमेल के बॉडी में अभी ग्राफेन फॉलिकल रप्चर के सेकेंडरी oocyte हमें मिल चुका है, हमने देखा उसमें अभी अवेलेबल है। अभी सेकेंडरी oocyte अगर अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, मतलब हमें एक जो हमें फाइनल जो है पॉसिबिलिटी क्या है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, स्पर्म कैन कम एंड फर्टिलाइज दैट सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, इससे क्या होगा, अभी देखो 2 केस हो सकते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन होगा इसके बाद, या तो नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर है वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता ही रहेगा, क्योंकि अभी जो एंडोमेट्रियल वॉल का थिकनेस है, उसका जो हेल्थ है उसे हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो इसीलिए जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो हमेशा ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर जेस्टेशन पीरियड, दैट इज एंटायर 9 मंथ इन केस ऑफ प्रेगनेंसी।
जब तक प्रेगनेंसी चलेगा तब तक जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है वो हमेशा ज्यादा रहता है, हार्मोन का जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल है हमेशा ज्यादा रहता है फीमेल के केस में ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड, दैट इज द एंटायर जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगा, कुछ कॉर्पस ल्यूटियम वैसे ही एज यूजुअल उसी स्ट्रक्चर में रहेगा। कब तक? जब तक प्रेगनेंसी है तब तक। ठीक है, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सो इट विल कंटिन्यू लाइक दिस इन दैट स्टेज। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? मान लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि आपका ये जो कॉर्पस जो ल्यूटियम है it will actually converted into another structure that is called corpus albicans and उसके बाद क्या होगा? ये corpus albicans जो है ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना देगा? कॉर्पस एल्बिकन। और ये कॉर्पस एल्बिकन धीरे धीरे क्या होगा? आपका डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम पहला तो कन्वर्ट होकर कॉर्पस एल्बिकन बन गया और उसके बाद वो डीजेनरेट हो गया, इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर जो है बॉडी में अभी अवेलेबल नहीं है which is going to increase the progesterone level। ठीक है, तो इसीलिए होता है फाइनली हम देखते हैं at the end of the cycle the progesterone level is decreased or it has become minimum। ठीक है ना, तो हम वापस मतलब by the end of the cycle क्या हुआ? हम वापस उसी कंडीशन में आ गए जो हमने शुरू में देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जब फिर से प्रोजेस्टेरॉन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा, इस क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एल्बिकन बन गया, कॉर्पस एल्बिकन बन गया और वो डीजेनरेट होकर खत्म हो गया। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल बहुत घटते घटते बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। और क्या होगा? फिर से वही जो सेम चीज, प्रोजेस्टेरॉन लेवल घट गया तो क्या होगा? आपका जो एंड्रोमेट्रियल वॉल है वो लॉस होगा, ब्लीडिंग होगा और ये क्या करेगा? फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर स्टिमुलेट करेगा एफएसएच को रिलीज करने के लिए। फिर एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकुलर जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी में उसको स्टिमुलेट करेगा ग्राफेन फॉलिकल बनाने के लिए। फिर ग्राफेन फॉलिकल जब बनेगा ड्यूरिंग द कोर्स द इमैच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स और दिस फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो क्या होगा? एस्ट्रोजन लेवल जो है उसका वो बनाता रहेगा, हार्मोन बनेगा तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? दो चीज होगा, एक है आपका जो एफएसएच है उसको जो सिक्रीशन है उसको घटा देगा और एलएच का सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो जो ग्राफेन फॉलिकल है उस रप्चर होके एक बन जाएगा, एक मिल मतलब हमें सेकेंडरी साइड मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा उसके बाद दो कंडीशन है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगा कंटिन्यूअसली अंटिल द birth of the child, that is entire pregnancy and gestation period, that is 9 month। और उस दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा बॉडी में, फीमेल के बॉडी में हमेशा मेंटेन रहेगा, ज्यादा रहेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाएगा और फिर डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, उससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है बॉडी में वो धीरे धीरे घटता रहेगा और एक समय आएगा मिनिमम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है हर महीने। ठीक है ना, सो आई होप इट इज क्लियर। So today in today's in this lecture we'll not discuss the diagram because the time is less. So the next lecture we'll discuss the diagram and also we'll go to the next topic as well. Thank you. Take care. Be safe. Stay.